अब ये रुकने वाला नहीं है. This is not going to stop now. Amen. Are you ready for the word? क्या आप वचन के लिए तैयार हो? भारत में जो अब परमेश्वर कर रहा है, जो बेदारी आ रही है, वो एक ऐसी बेदारी है जो हर एक परमेश्वर का जो बेटा और बेटी है, वो परमेश्वर के वचन उस स्रोत में जा रहा है जो जीवन का वचन है, जो चंगाई का वचन है, जहाँ सामर्थ है. What the Lord is doing in India, the revival that is coming in India, every son and daughter of God is going to that source of life, which is the Word of God. Amen. So फसल तो तैयार है, The harvest is ready. मजदूर थोड़े हैं. The laborers are few. क्योंकि सेवा तो हर कोई कराना चाहता है अपनी. Because everybody wants to be served. परमेश्वर के घर में सेवा करने वाले सेवादार थोड़ा कम है अभी. But in the house of God, the servants, those who are willing to labor, are few. So अगर आप सुन रहे हैं मेरी आवाज को, So if you can hear my voice, if you are hearing me right now, बहुत सारे सेवा करने वालों की जरूरत है. many laborers are needed. Amen. क्योंकि काम बहुत बड़ा है. Because the work is too big. हम उस समय में प्रवेश कर रहे हैं जब कटनी लाखों करोड़ों में होने वाली है आगे. We are entering in such a time when the harvest will be in lakhs and crores in days to come. Amen. ये ग्राउंड मिलना बहुत परमेश्वर का फेवर था, केवल जो हमें ग्राउंड मिला. To get this ground was only by the favor of God that we got it. शुरू हो चुका है. It has begun. Amen. Amen. जो परमेश्वर सालों पहले मुझे दिखाता था, What the Lord used to show me years ago, जब हम लोग 20 लोग थे, when we were 20 people, तब मैं उस टाइम बोलता रहा, अगर मैं तुम लोगों को बोलूंगा तो तुम विश्वास नहीं करोगे. at that time I used to say, if I will tell you, you will not believe. मगर ये शुरुआत है अभी. But this is just the beginning. Amen. और मैं खुश इसलिए हूँ कि जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं वो वचन की तरफ जा रहे हैं. And I'm happy because the sons and daughters of God are going towards the word of God. This revival is not about a personality. ये बेदारी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं है. This is about the word of the living God. ये जीवित परमेश्वर के वचन के बारे में है. Amen. Amen. तो भैया ये ऐसी खमीर है जो आटे में मिल चुकी है. So this leaven has been mixed into the dough. हम लोग चले भी जाएंगे तो ये काम रुकने वाला नहीं है. Even when we go away, this work will not stop. Amen. Hallelujah. So कल हमारी टीम उड़ीसा जा रही है, आपको प्रार्थना में रखना है. So our team is going to Odisha tomorrow. Keep them in prayers. और सारे पास्टर्स जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, वो सब एक बात बोल रहे हैं. वो कह रहे हैं कि आपको कैसे परमिशन मिल जाती है हमें नहीं पता, ये प्रभु का फेवर है. And everywhere we are going, they're saying, you know, how do you get permissions? We don't know. This is the favor of God. जो जगहें बंद हैं 10-10 साल से कोई परमिशन नहीं है, इम्पॉसिबल है परमिशन मिलना. The areas that have been shut for 10 years and to get permission is almost impossible there. हमारे परमेश्वर के लिए कुछ इम्पॉसिबल है. There is nothing impossible for our God. Amen. इवन उड़ीसा में यहाँ पे परमिशन मिलना it was next to impossible. To get permission in Odisha वो असंभव था लगभग. मगर कर रहा है प्रभु कुछ. But the Lord is doing something. Amen. Amen. So अब जब आ गए हो, So when you have come, अपने पड़ोसी को बोलो जब आ गए हो tell your neighbor when you have come, तो पूरे आ जाओ. then come fully. Amen. दूसरी बात, आज मैं छोटा वचन सिखाऊंगा. I'll teach a short word today. मैं नहीं, आज छोटा सिखाना पड़ेगा. I'll have to teach a short word today. बिकॉज अदरवाइज आप लोग 11-12 बजे से पहले घर नहीं पहुंच पाओगे. आपको पता है बगल में एक इवेंट चल रहा है बहुत बड़ा. Otherwise, you won't reach home before midnight, and there's an event happening next door. हाँ,
आपको पता है आने में कितना मजा आया आपको? You know how much you enjoyed coming to church today. जाने में मजा चाहिए? Do you want to enjoy going back? सो कोशिश है कि 2 बजे तक खत्म करना है, The attempt is to finish. इसीलिए हमने आज लाइव टेस्टिमनीज नहीं ली. That's why we didn't take live testimonies today. ठीक है, तो मैं जल्दी सिखाऊंगा, आपको जल्दी सुनना है और जल्दी कैच करना है. ठीक I'll है? teach fast, you hear fast and catch fast. या आज वनडे नहीं T20 करना पड़ेगा. We'll have to do T20 today. ओके, तो जो मैंने सोचा था वो थोड़ा सा ही सिखा पाऊंगा मैं आपको. What I thought, I'll only be able to teach a little bit of that. ओके, मगर थोड़ा काफी होगा. But that bit will be enough. All right, let's go to Proverbs chapter 3. नीति वचन 3, उसकी पहली आयत. the first verse. ओके, आइए हम सब खड़े हो जाएं Let us all stand और साथ मिलकर and together हम लोग इसको पढ़ेंगे और We will उसके read- बाद फिर हम प्रार्थना करेंगे और वचन में चलेंगे. we ठीक will है? read this and then pray and go into the word. हे मेरे पुत्र, एक साथ पढ़ेंगे. रेडी है? 1 2 3. हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना. Yeah, next. My son, do not forget my law, but let your heart keep my commands. ओके, दूसरा. क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा. For length of days and long life and peace they will add to you. कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना. Let not mercy and truth forsake you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. आमीन. स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके लिखित वचन के लिए जिसमें जीवन है, Heavenly हमारे Father. लिए निर्देश है. We thank you for your living word which has life and instruction for us. खुदावंद, ये तेरा घर है. हम वो पीढ़ी हैं जो केवल वचन को सुनने वाले नहीं, पर तेरे वचन का आदर करने वाले और उस पर चलने वाले लोग हैं. Lord God, this is your house and we are the generation that doesn't just hear your word but live and obey your word. हम वो अनुग्रह आज मांगते हैं We ask for your grace कि ये वचन आज हमारे हृदय रूपी पटियों में लिखा जाए. that this word would be written on the tablets of our heart. यीशु के नाम में. In Jesus' name. Okay, आप सब बैठ सकते हैं. You all can be seated. Okay. This is a beautiful chapter. ये खूबसूरत चैप्टर है Proverbs 3. नीति वचन 3. Okay. शुरुआत होती है my son. It begins with मेरे पुत्र या मेरे बेटे. That's the language of a father imparting wisdom. ये एक पिता की भाषा है जो अपने बेटे को बुद्धि दे रहा है. Okay. So ये जो लिखा गया है ये strangers के लिए नहीं है. This is not written for strangers. ये उनके लिए नहीं है जो अभी पिता के घर से बाहर है. ये उनके लिए जो अब पिता के घर के अंदर आ गए हैं. अब उनके लिए कुछ विजडम है, कुछ निर्देश है. Not for those who are outside the Father's house, but those who are inside, there is instruction and wisdom for them. Amen. My son, do not forget my law. हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना. हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना. My son, do not forget. जिस my दिन law. आप ये समझ जाएंगे कि शिक्षा कितनी जरूरी है हमारे लिए, The day, और उस शिक्षा के अंदर सब कुछ है जो आपको चाहिए. the day you understand that the instruction of God is so important for us and everything that we need is within it. Do not forget my law. The law here is the Hebrew word Torah, जिससे हमें शब्द मिलता है teaching या instruction, निर्देश. यहाँ जो अंग्रेजी में लॉ शब्द लिखा है, तोरा शब्द है जिसका अर्थ है निर्देश या इंस्ट्रक्शन. कई बारी जब मैं कहता हूं कि हमें ईसाई
ईसाइयत से बाहर आना है, कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं। वो कहते हैं आप ऐसा क्यों बोलते हो, आप क्यों अटैक करते हो हमें? Sometimes when I say we have to come out of religious Christianity, some people get offended and they say, why do you attack like that? मैं अटैक नहीं कर रहा हूँ, I'm not attacking. मैं आपको थोड़ा हिलाना चाहता हूँ, I want to shake you. मैं आपकी अटेंशन चाहता हूँ I want your attention. कि आप रीति रिवाज वाली मसीहत से परमेश्वर के राज्य में जो सत्य है उसमें चलना शुरू करो। I want to get you out of ritualistic Christianity and start to walk in the truth of the kingdom. क्योंकि कितने आज ऐसे मसीह हैं, उनको कोई निर्देश नहीं दे सकता। Because there are so many believers today, nobody can give them instructions. They are the master of their own life. वो अपने जीवन के स्वामी हैं खुद. कोई उनको कुछ नहीं बोल सकता। No one can tell anything to them. वो कहते हैं my way or the highway. हे मेरे पुत्र, My son, मेरी शिक्षा को ना भूलना। do not forget my law. Understand the father's heart. पिता का दिल समझें. क्योंकि एक दिक्कत है हम सब में, Because we all have a problem. हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। We forget very easily, very quickly. दाऊद कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। David says, bless the Lord, O my soul, and forget not any of his benefits. Forget not. मत भूलना. बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं We forget very कहाँ quickly. से प्रभु ने उन्हें उठाया। From where the Lord lifted them up. बहुत जल्दी भूल जाते हैं Very quickly people forget जो परमेश्वर ने उनके लिए किया। what the Lord has done for them. हे मेरे पुत्र, My son, मेरी शिक्षा को ना भूलना। do not forget my law. व्यवस्था विवरण 8:11 में हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 8:11, Deuteronomy 8:11। इसलिए सावधान रहना। अपने Beware. पड़ोसी को बोलो सावधान रहना। Beware. इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दे। Beware that you do not forget the Lord your God by not keeping his commandments, his judgments and its statutes which I command you today. ओके, आगे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, Lest when you have eaten and are full and have built beautiful houses and dwell in them, और तेरे गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, गाय बैल तो नहीं, तुम्हारी एक्टिवा की और गाड़ियों की जो भी है बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरे सब प्रकार का धन बढ़ जाए, when your herds and your flocks multiply, your silver and gold are multiplied, and all that you have is multiplied, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए, when your heart is lifted up, और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। and you forget the Lord your God who brought you out of the land of Egypt from the house of bondage. ऐसा ना हो कि तेरे अंदर अहंकार आ जाए। Let it not be so that your heart is lifted up or made arrogant. तो मैं आपको एक बात बता दूं, I'll tell you one thing. Pride is the biggest enemy of the grace of God. घमंड परमेश्वर के अनुग्रह का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस दिन आप सोचने लगे ना मैं कुछ हूं, The day you start thinking I मैं ही am मैं हूं। somebody, you start thinking I am. यीशु ने कहा मेरे पीछे चलना है तो मैं का इनकार करना पड़ेगा। Jesus said, if you want to follow me, deny yourself. Amen. हमारे जीवन में जो भी अच्छी चीज वो करता है वो हमेशा उसकी तरफ इशारा करना चाहिए। ये उसकी कृपा है,
उसकी करुणा है, उसकी भलाई है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा है. Whatever good He does in our life should point to Him, that it is because of His goodness, His mercy, His kindness that we have anything good in our life. दाऊद भूला नहीं उसको, David did not forget, राजा बनने के बाद भी. even after he was a king. जब परमेश्वर के राज्य में उसको बोना था मंदिर के लिए, तो वो कहता है कि मैं कौन हूँ प्रभु. When वो राजा है. When कोई he नहीं had- कहता मैं हूँ कुछ. When he had to sow in God's house, he was a king. कहता मैं कौन हूँ. He मैं said, वही "Who तो am I?" था जो भाइयों में जो मेरी गिनती भी नहीं थी. And he remembers he was the least among his brothers, not even counted among them. वही तो था कि जब बुलाया मेरे पिता ने, वो मुझे भूल गया कि मैं भी हूँ. I was that guy when my father called his sons, he forgot about me. मैं वही तो हूँ जो भेड़ चराने जाता था. And the same guy who was a shepherd to the sheep, वो भूला नहीं. he did not forget. अगर फेवर में चलना चाहते हो जिंदगी भर, If you want to walk उसकी in करुणा favor, और भलाई को कभी भूलना मत. if you want to walk in favor all your life, never कभी forget his भूलना मत goodness उसने and mercy. कहां से आपको उठाया है. कहीं Never- ऐसा ना हो कि आपके अंदर अहंकार आ जाए और फिर आप उसके अनुग्रह के अधीन न रहो. Never forget where he brought you out of, that you would enter into pride and forget where he got you out. आमीन. और आप जानते हैं क्यों ऐसा होता है कि लोग भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने किया. क्यों ऐसा होता है कि प्राइड उनका हार्ट ग्रिप कर लेता है? क्योंकि वो धन्यवादिता में नहीं जीते. And you know why people forget what God has done and why people go into pride is because they don't live in thanksgiving, thankfulness. हाँ, जर्नी लंबी है, आगे जाना है, Yes, the journey is long and we have to proceed. मगर पीछे मुड़ के कभी देखना कि कितना दूर आ गए हो But look back sometime and see how far you have come और कितना विश्वास योग्य वो हमारे साथ रहा है. and how faithful He has been with us. कितना कुछ इस दुनिया में आया, So much happened in this world, उसने आपको आपके परिवार को सुरक्षित रखा है. but He protected you and your family. Bless the Lord, O my soul, and forget not His benefits. यहोवा को धन्य कहे मेरे मन और उसके किसी उपकार को मत भूलना. Amen. Amen. My son, do not forget my law, मेरे बेटे मेरी शिक्षा को मत भूलना. but let your heart keep my commandments. Let your heart keep my commandments. पर तेरा हृदय मेरी आज्ञाओं को माने. तेरा हृदय, परमेश्वर क्या चाहता है आपका? कह रहे थे. He wants your heart. Until His word goes in your heart, जब तक उसका वचन आपके दिल में ना जाए, you will do it out of obligation. आप जबरदस्ती के रूप में You करोगे. will do it as a rule. आप एक नियम की तरह करोगे. जब आपके हृदय में आ गया, When it comes into your heart, तो वो आपका हिस्सा बन गया. then it becomes a part of you. And that's what God wants. और यही परमेश्वर- परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन आपके हृदय में समा जाए. He wants His word to dwell in your heart. क्या होता है जब आप उसकी शिक्षा को नहीं भूलते? What happens when you do not forget His teachings, His law? जब उसका वचन आपके हृदय में जाता है, When केवल his- मुंह में नहीं, कान में नहीं, मगर कहाँ? हृदय में. When His word enters your heart, not just your mouth and your ear, but your heart. मैंने आपको रेस्ट के बारे में सिखाया था. मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह हमारी रेस्ट है. I told you about rest and I told you how the Lord Jesus is our rest. और जो हफ्ते में हम एक दिन मिलते हैं, ये उस रेस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए मिलते हैं. And this one day of the week when we meet is to celebrate that rest.
ठीक, I don't want to preach today. I just want to share my heart. Is that okay? मैं प्रचार नहीं करना चाहता, अपना दिल आपको बताना चाहता हूँ. कभी आप बैठ के सोचना, कभी सोचना अकेले बैठ के, मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? Sometimes sit and think, what is the greatest priority of my life? मेरे जीवन का सबसे बड़ा मकसद क्या है? What is the greatest aim of my life? Because I'm telling you, priorities can change in a split second. क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, प्राथमिकताएं पलक झपकते ही बदल सकती हैं. मैंने आपको बताया था टाइटैनिक में असली की कहानी है. एक बहुत अमीर औरत थी जो अपनी संदूकें भर के हीरे जवाहरात ले जा रही थी टाइटैनिक में. I told you the story of this very rich, very wealthy woman in Titanic who was carrying boxes full of her treasure. पौलुस कहता है कि अगर हमारा जीवन का मकसद केवल इस पृथ्वी पे है तो हम सबसे ज्यादा अभागे मनुष्य हैं. Paul says if all we are concerned about is the things of this life, then we are the most unfortunate people. और वो जो स्त्री थी, जब टाइटैनिक टकराया उस आइसबर्ग से, डूबने लगा, तो लाइफ बोट्स थी कुछ. तो सबसे पहले उन्होंने कहा जो औरतें और बच्चे हैं हमें उन्हें बचाना है, उनको प्रायोरिटी देनी है. तो जो वहाँ के वॉलंटियर्स थे या जो भी स्टाफ था, वो औरतों और बच्चों को उस लाइफ बोट्स में बिठाने लगे. And when the Titanic began to sink, the staff, they said we have to save women and children first. Decided to put them in the life तो boats. उन्होंने कहा जल्दी से कुछ सेकंड्स आपके पास, जाओ और जो आपका इंपॉर्टेंट है वो ले आओ. So they said, go quickly, you have a few seconds, go get what is most important for you. वो औरत वापस गई, That lady went back, अपने सारे हीरे जवाहरात नेकलेस देख रही है, saw all the jewels, all the necklaces she had. और फिर बगल में कुछ संतरे रखे थे, And then there were some oranges right next to them. संतरे उठा के चली गई. She carried the oranges and walked away. क्यों? Why? क्योंकि उस समय Because at that time, वो संतरे 1000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण थे. the oranges were 1,000 times more important. जो आपका धन है आज, क्या वो इटर्निटी में भी उतना वैल्यूएबल होगा? Whatever your treasure is today, will it be equally valuable in eternity? जैसा हम जी रहे हैं आज, जो हमारी प्रायोरिटी है, The kind of life we are living today, whatever is our priority, विल इट मैटर इन इटर्निटी? क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा अनंत में? मैं आपको बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा लोग जिन चीजों में परेशान है ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अनंत में. I'm telling you, more than half the people, the things they are concerned about, they don't even matter in eternity. मेरा एसी नहीं चल रहा, My AC is not functioning. चोपड़ा ने मुझसे बड़ा टीवी ले लिया, Chopra bought a bigger TV than me. हमने एक्टिवा ली, पड़ोसियों ने कार ले ली. We bought an Activa, neighbors bought a car. अगर आप इटर्निटी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो माफ करना बहुत आसान हो जाएगा. When you see through eternity's perspective, it's easy to forgive. कंपटीशन खत्म हो जाएगा. The competition will finish. किसी को आपको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, You won't have to prove anything to क्योंकि anybody. आप ऐसे राज्य में हो जहां कुछ छुपा नहीं है. Because you are in a kingdom where nothing is और hidden. फेक जो इमेज है ना, वो भी लंबा नहीं चलने वाला. And a fake image does not last long. लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं. You can fool people. हम लोग फिलीपींस में थे, वहां पे पास्टर पॉल, मैं बहुत सीखा उनके साथ रह के. We were in Philippines and I met Pastor Paul. जो and भी I learned so परमेश्वर के much. दास मुझे मिलते हैं, मैं उनसे सीखता हूँ कुछ ना कुछ. All the men of God that I meet, I learned something from them. उन्होंने कहानी बताई रहबोम की, जो सुलेमान का पुत्र था, कि जब उसके पास फाइन गोल्ड, चोखा सोना दिया था सुलेमान ने. He taught about the story of Rehoboam, the son of Solomon, who gave fine gold to his son. और दुश्मन आए और वो सोना ले गए. The enemies came and they took the gold away.
अब जब वो ले गए Now, when they took it away, तो अब राजा के पास सोना था भाई, दिखाना था सोना। अब क्या करें, सोना तो बचा नहीं, the king had gold, he had to show off. तो Now, अब क्या करना है? he had no gold. तो अब ब्रास बनवाया। So he made brass. ब्रास क्या बोलते हैं हिंदी में? तांबा। हाँ, पीतल या तांबा? पहले डिसाइड कर लो। हाँ, एक काम करो जल्दी से, सेंट गूगल से पूछो अभी। कांसा। क्या पीतल लॉक कर दिया जाए? पक्की बात, पीतल। ठीक है चलो भाई, इसमें तो तांबा लिखा है।